Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday I uploaded a video and I asked your opinion how many candidates will be called for IBPS RRB officer, IBPS RRB office assistant main. Many of you reported 10 times, some said 20 times, some said 15 times, and everybody has given as per the guesswork. And why this has happened? This has happened because very few people read the notification. And the notification always contain the process. And this process they tell you what will be their selection process. And if we read the notification of IBPS RRB this time, the notification gives the idea how many candidates will be called and what will be their procedure of selection. So they have said like this: candidates have to qualify in both tests by securing minimum cutoff marks. That means there is a sectional cutoff. So first thing, a candidate has to qualify the sectional cutoff. Second, adequate number of candidate in each category. That means the number of candidate called for main will depend upon your category. From the category you have applied, you will qualify according to that cutoff. Depending upon requirement, will be shortlisted online main examination. So the word uses adequate. Now this adequacy is not defined. Some people say 10 times, some people say 15 times, some people say 20 times. So this adequacy is not defined. That means IBPS kept a cushion. Depending upon their information, may be verbal, may be written, they may decide how many candidates are to be called for main. And this gives a leverage on higher side. IBPS is a recruitment agency. Their intention is to recruit. So they always give benefit of doubt to the candidate. So they will not limit the number of candidates to be called for main. They may like to test more and more candidates. So always there is an endeavor to call more and more candidates for the main. And this gives a positive news to you. The people, those have appeared and looking at the present vacancies and looking at the cutoffs may not be the factor. The factor is how many times they may call. They may call 10 times, they may call 15 times, they may call 20 times, or even what will be the base, what will be the number of vacancies they will take, whether the vacancies available till now, whether the vacancies that is available in the notification, whether they will consider the vacancy as on the date of result. Normally they consider the vacancies as on the date of result. So the number of banks they go on increasing or decreasing their vacancies, it is a continuous process. So on a given date, they may have some set of vacancies that may not be known to the candidates because they only modify the notification if there is a last date of application. After last date of application, whatever increase or decrease of vacancy, that is not notified by IBPS. There is no system. So they don't tell the vacancies increase or decrease by any means. Some people are able to get feel of these vacancies by putting RTIs. Sometime RTI information is historic, sometime that comes to be true, sometime that is based on the older data. So again, it is a fluid situation. So we should remain hopeful and always prepare for next phase. That is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल हमने एक वीडियो डाली जिसमें आपसे एक प्रश्न किया कि IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर में कितने लोगों को कॉल किया जाएगा. उसमें अलग अलग व्यूज़ आए. किसी ने कहा 10 गुना, किसी ने कहा 15 गुना, किसी ने कहा 20 गुना, और उसका क्या आधार है ऐसा किसी ने नहीं बताया. हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल दिया हो सकता है किसी अन्य इंफॉर्मेशन से बोल दिया हो. पर ऐसा क्यों होता है कि हमें नहीं पता कितने लोग बुलाए जाएंगे? क्योंकि हमने नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा. नोटिफिकेशन के अंदर इस बारे में चर्चा है और ये चर्चा ऐसी है जो आपके हित में है.
मगर हमने उसको पढ़ा ही नहीं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको एक क्लैरिटी आए इसके ऊपर। काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट को लेके, और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं और उसमें कई बार ऑथेंटिसिटी होती है, कई बार ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। मगर ऑथेंटिसिटी हमें कहाँ से मिलती है? नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन की भाषा क्या कहती है इसके बारे में? वो ये कहती है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मीन्स कैंडिडेट को दोनों सब्जेक्ट, दोनों टेस्ट पास करने होंगे मिनिमम कट ऑफ पार करके। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेक्शनल कट ऑफ है। आपको हर एग्ज़ाम, जो 2 पेपर हुए हैं आपके IBPS RRB के अंदर, क्वांट और रीजनिंग, दोनों को अलग अलग पास करना होगा। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया कि सेक्शनल कट ऑफ मेरा पास हो जाए। दूसरा पैरामीटर क्या है? एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में एडिक्वेट मीन्स उतने कैंडिडेट जितना IBPS समझता है कि होने चाहिए कम से कम, वो कॉल किए जाएंगे। एडिक्वेट की डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने। 10 गुना, 20 गुना, 15 गुना कहीं डिफाइन नहीं किया। अपने पास क्वेश्चन रखा है। एडिक्वेसी क्या होगा ये अपने पास रखा है। मीन्स उनकी कोशिश होगी अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को मेन में बिठाने की, और वो कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगी। तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन रख लिया एडिक्वेट, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने तो 10 गुना कहा था, इसमें तो 15 गुना बुला लिए। तो ये आपके फेवर में है। ये जो क्लॉज है ये कैंडिडेट की फेवर में है, क्योंकि IBPS रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसका हमेशा इंडेवर है अधिक से अधिक लोगों की रिक्रूटमेंट करे। अगर वो मेंबर बैंक रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अधिक कैंडिडेट को बुलाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए एडिक्वेट नंबर वर्ड है, और हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो कैंडिडेट की संख्या निर्धारित होगी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो बेसिक फैक्टर क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट मीन्स जो मेंबर बैंक्स हैं उन्होंने कितने कैंडिडेट मांगे हैं। अब ये वैकेंसीज कौन सी होंगी? जो नोटिफिकेशन में है, या जो आज है, या डेट ऑफ रिजल्ट होगी, इसके ऊपर साइलेंट है। पर नॉर्मली IBPS की कोशिश होती है कि जो डेट ऑफ रिजल्ट की वैकेंसीज हैं उसके ऊपर अपना डिसीजन ले ले, या जो उनके पास संभावित वैकेंसीज हैं, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन वर्बल भी है उसको भी वो बेस बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड यूज़ किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये नहीं कहा गया रिटर्न हो या वर्बल हो। तो IBPS ने यहाँ भी अपना क्वेश्चन रखा है। तो नॉर्मली जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उस दिन उनके पास कितनी वैकेंसीज हैं वो भी एक आधार हो सकता है, क्योंकि एक बार किसी ने पूछा था कि आपने कितने कैंडिडेट बुलाए, तो IBPS ने रिप्लाई में कहा था कि जिस दिन मैंने रिजल्ट निकाला उस दिन जितनी वैकेंसीज थे उसका इतने टाइम्स मैंने कैंडिडेट को बुलाया है। तो अगर हम उससे क्लू लेते हैं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आधार हो सकता है। अब वो वैकेंसी कितनी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब लास्ट डेट निकल जाती है उसके बाद IBPS कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालता है। तो जो भी अपडेशन ऑफ वैकेंसीज होता है, बढ़ रही हैं घट रही हैं, वो IBPS को ही पता है। कई बार लोगों को पता लग जाता है, वो RTI लगाते हैं, मेंबर बैंक बता देता है, और वो इन्फॉर्मेशन कई बार हिस्टोरिक भी होती है, कई बार सही भी निकल जाती है, कई बार सही भी निकलती है। तो इसलिए होप्स अलाइव है। आपने अपनी होप बंद नहीं करनी है, जो मर्जी आपकी अटैम्प्ट है, क्योंकि कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये एक संभावित आंकड़ा है। ये आंकड़ा एडिक्वेट वर्ड पे टिका हुआ है, और एडिक्वेसी IBPS कितना मानती है ये उसके ऊपर टिका हुआ है। इसलिए अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है तो हमारे हित में है हम मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें, और इसीलिए सब वीडियोस में मैं हमेशा आपको कहता हूँ आप एग्ज़ाम रेडी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।